Hello students, how are you? We have discussed many lessons based on English grammar and English literature. Now we are going to play a few spelling games through which we shall learn a lot of vocabulary or more vocabulary, more words, a good command over any language. अगर आप किसी भी भाषा पर एक अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं, एक मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं, तो उस भाषा के शब्दों पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, उसके ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। और वर्ड्स पर किसी भी बच्चे की, किसी भी स्टूडेंट की पकड़ कैसे बनती है? We can learn many more and more words through vocabulary games. And today we are going to discuss, or we are going to play a few vocabulary games through which we shall learn more and more words effectively. Today you are looking at the whiteboard and there are 4 glasses and a jar and some letters are written on them. उन पर कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं। हम वर्ड्स को क्रैम तो नहीं कर सकते, बहुत सारे वर्ड्स को क्रैम करके हम बहुत ज्यादा वोकैबुलरी पर पकड़ नहीं बना सकते। इसके लिए आवश्यक है कि हम कुछ ब्रेन एक्टिविटीज करें, कुछ माइंड ब्लोइंग एक्टिविटीज करें, जिससे हमें कुछ सोचना पड़े। दिस गेम कैन बी प्लेड बिटवीन you and your friend, you or your classmate, between two students, and you can make pairs in the class. आप क्लास में अपने पेयर्स बना सकते हैं और उससे इस तरीके के वोकैबुलरी गेम्स खेल सकते हैं। We shall not study today. We shall play games and we shall learn more words through these activities or these vocabulary games. First of all, for example, there is a glass and I have written a, I, O, U, all the 5 vowels from top to bottom, and in the second glass I have written the same a, I, O, U, 5 vowels from bottom to top in the glass. We have to fill in a few words and there should be a condition. Should or should not be, it depends upon the players. ये आप खिलाड़ियों पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के नियम और शर्तों का पालन करते हुए इन वर्ड्स को, इन ग्लासेस को वर्ड्स से फिल इन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां एक एग्जाम्पल लिया है। दिस वर्ड, द बॉटम वर्ड शुड बी 3 लेटर्ड वर्ड। ये 3 लेटर वर्ड होना चाहिए। Then 5 letter, 7 letter, 9 letter and 11 letter word. And this or every vowel should be in the center of the word, in the middle of the word. ये इसके बिल्कुल मिडल में होना चाहिए। अर्थात ये वोवल है, इससे इधर यदि 1 लेटर है तो इधर भी 1 हो, इससे इधर अगर 4 लेटर हैं तो इधर भी 4 हो। इस प्रकार से हम नए वर्ड्स बना सकते हैं, सोच सकते हैं। दिस इज अ वोकैबुलरी गेम एंड वी कैन प्ले द वोकैबुलरी गेम्स इन पेयर्स। मान लीजिए स्टूडेंट ए एंड दिस इज स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए विल फिल इन द वर्ड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड स्टूडेंट बी विल फिल इन द वर्ड्स इन द ग्लास फ्रॉम बॉटम टू टॉप। But the word should be 3 letter, 5 letter, 7, 9 and 11 letter words as given on the board. For example, हम बहुत सारे इस तरीके के इंग्लिश के वर्ड्स बना सकते हैं। हमने कहीं ना कहीं लेसन में, किसी स्टोरी में, किसी पैराग्राफ में कहीं ना कहीं इन वर्ड्स को पढ़ा होता है। और यदि नहीं भी पढ़ा होता तो एक दूसरे से हम इन वर्ड्स को सीख सकते हैं, उनके मीनिंग सीख सकते हैं या फिर उनसे अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। इफ यू नो द स्पेलिंग, मीनिंग, synonym and antonym of the word and you can use it in your own sentence, you know the word.
जब भी हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, कोई लेसन पढ़ते हैं, कोई पोएम पढ़ते हैं, वी कम अक्रॉस सो मैनी न्यू वर्ड्स। हमें बहुत सारे नए शब्द मिलते हैं। हमें उन शब्दों को ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, उस शब्द के पास रुकना चाहिए। आप कौन हैं? व्हाट इज योर स्पेलिंग? व्हाट डू यू मीन? और what is your synonym, what is your antonym, what is your meaning, how can I use you in a sentence of my own? If I can do this, I have known the word specifically or effectively. आइए अब हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, this should be a 3-lettered word. Student A fills in the glass with the words as described in the game. For example, if I say I write a 3-letter word but, but, like this. This is a 3-letter word and the vowel is in the center or in the middle of the word. Now you can write the second student B writes this word having A in the center of the word. For example, BAT, bat, like this. यहां पर हमने 3-letter वर्ड को दोनों स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर लिया। टर्न बाय टर्न ये इस प्रकार से इस गेम को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टूडेंट ए। स्टूडेंट ए इस वर्ड को कंप्लीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन कंप्लीट इट लाइक दिस, ABOD, about. 2 letters on the left side of this vowel and 2 letters on the right side of this vowel. This is a 5-letter word, about. Now turn is this, E. We can write BREAD, bread. Bread. We know bread. Every student knows about bread. Bat, bread, but, about. In the same way, now I have to fill in a 7-letter word, and 7-letter word means 3 letters on the left side of I and 3 letters to the right side of I. For example, MEDCAL, medical. This is a 7-letter word having I at the middle of the word, medical. In the same way, the next student fills in like this, ACHIAVA, achieve, achieve, प्राप्त करना, to get. इस प्रकार से स्टूडेंट्स इस गेम को खेल सकते हैं। अगर आपको ये वर्ड, कोई स्पेलिंग, कोई वर्ड सोचने के बाद भी ध्यान में नहीं आता, तो आप क्लासरूम के साथ जा सकते हैं, अपनी क्लास के दूसरे स्टूडेंट से पूछ सकते हैं और इस गेम को टीचर्स के साथ और टीचर्स की निगरानी में आप इस गेम को खेल सकते हैं और इन वर्ड्स को याद करते हुए, इनके मीनिंग्स पूछते हुए, इनकी स्पेलिंग्स को ध्यान में रखते हुए, इनको अपने सेंटेंसेस में यूज करते हुए बहुत सारे नए वर्ड्स आप सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, O, 4 letter in this side, like AU, TH, O, RITY, authority. I can write authority. There are 4 letters to the left side of O and 4 letters to the right side of O. In this way, we can fill in this glass with new words. Next word is, this should be an 11-letter word. And we can think of and we can write agriculture. Agriculture. There are 5 letters to the left side of this vowel U and 5 letters to the right side of this letter U, and it becomes agriculture.
and the student B has filled in the glass with 5 words. ये कंडीशन जरूरी नहीं है इसी प्रकार से हो, आप पहले शुरू में 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स, 5, 6 एंड सो ऑन, आप कोई भी रूल्स अपने बना सकते हैं और इस गेम को आगे बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट इज बट, अबाउट, मेडिकल. आप इस प्रकार से इसको आगे बढ़ा सकते हैं. एंड नाउ दिस इज BUTTERFLY, butterfly. It becomes butterfly. There are 4 letters to the left side of this vowel E and 4 letters are to the right side of this vowel A, and these vowels are in the center or middle of these words. ये इनके बिल्कुल बीच में आते हैं और इस प्रकार से आप इन वर्ड्स को और आगे बढ़ा सकते हैं. नेक्स्ट इज disgraceful. 5 letters to the left side of A. Disgraceful. 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 Like this. Student A and B both have filled in the glasses with words depending upon the rules. Now you have to follow the same rules and fill in the next glasses with the words, and rules will be same. Try yourself. आप खुद ट्राई कर सकते हैं. Take the screenshot of this exercise and try yourself. Fill in the glasses with the words as we have filled in already. Now let us take one more example of this vocabulary game or vocabulary enrichment activity. There is Azar. Let's play and win. आप इस तरीके से टीचर्स भी इस तरीके की एक्टिविटी क्लास में देकर एक छोटा सा प्राइज, जो सबसे पहले करेक्टली इस जार को फिल इन करेगा, उसे मैं एक पेन, एक पेंसिल, एक नोटबुक प्राइज के तौर पर दिया जाएगा. द स्टूडेंट्स विल ट्राई, दे विल डू. वो बिल्कुल मन से लग जाएंगे इन गेम्स को करने में, इन एक्टिविटीज को करने में. उन्हें पढ़ाई बोझिल नहीं लगेगी और वो देखते ही देखते गेम्स और एक्टिविटीज के थ्रू उनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी और वो इंग्लिश लैंग्वेज पर एक अच्छी पकड़ बना पाएंगे. आइए हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से इन वोकैबुलरी गेम्स को करते हुए अपनी वोकैबुलरी को एनरिच कर सकते हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी. जरूरी नहीं है हम कोई भी एक स्टैंडर्ड रूल लेकर चलें. रूल आप क्लास वाइज, स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स, लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स के हिसाब से अपने रूल्स को चेंज कर सकते हैं और डिफरेंट प्रकार की एक्टिविटीज, डिफरेंट प्रकार के वोकैबुलरी गेम्स उनको दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड और ग्रीन बोर्ड जो भी अवेलेबल है आपकी क्लास में, इस तरीके की एक्टिविटीज बोर्ड पर बनाकर 1 by 1 स्टूडेंट्स को बोर्ड पर बुला सकते हैं, उनसे फिल इन करवा सकते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं. दे विल थिंक ओवर एंड फिल इन द जार विद न्यू वर्ड्स. हमने यहां पर देखा और आपने एक कंडीशन लगा दी, फिल इन द जार with new words and all the words should be 5-letter words. 2 words to the left side of this letter and 2 words to the right side of this letter. हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं. आप इस प्रकार से कुछ लेटर्स को किसी भी आकृति में, किसी भी शेप में लिख सकते हैं और यहां से लेफ्ट और राइट लेटर्स फिल इन करते हुए मीनिंगफुल वर्ड्स बनवा सकते हैं. For example, this should be a 5-letter word. और इस प्रकार से आप इनको कंप्लीट करवा सकते हैं. देखिए, फॉर एग्जाम्पल, हमने एक वर्ड को कंप्लीट किया, BIBLE, बाइबल. जरूरी नहीं है हम बाइबल ही लिखें, हम कोई और वर्ड भी लिख सकते हैं. वी कैन राइट टेबल, TABLE, टेबल. इस प्रकार से बच्चे सोचते हुए
इन वर्ड्स को, इस जार को इन वर्ड्स से फिल इन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंकल, UNCLE। आप स्टूडेंट्स के लेवल के हिसाब से, उनकी क्लास और स्टैंडर्ड के हिसाब से रूल्स फिक्स कर सकते हैं। यहां पर आप 3 लेटर वर्ड्स भी ले सकते हैं, 2 लेटर वर्ड्स भी ले सकते हैं, 4, 5 लेटर वर्ड्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इज डी। फॉर एग्जाम्पल मैडम। इस प्रकार से आप कोई भी लेटर ले सकते हैं, कोई भी वर्ड ले सकते हैं और कोई भी रूल आप अपना बना सकते हैं और इस प्रकार से आप इसको फिल इन करवा सकते हैं। यहां पर हमने, मान लीजिए हम जे की बात कर रहे हैं, एंजॉय, ENJOY, एंजॉय, लाइक दिस। दिस बॉय सेज लेट्स प्ले एंड विन द गेम। आइए हम खेलते हैं और इन गेम्स को जीत लेते हैं, विनर बन जाते हैं। विनर कौन नहीं बनना चाहता? यदि आप बच्चों के सामने इस तरीके के गेम्स, इस तरीके की एक्टिविटीज उनके सामने रखेंगे, उन्हें कुछ सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसके बाद आप इन वर्ड्स को उनकी नोटबुक में नोट करवा सकते हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग टीचर्स बच्चों को बता सकते हैं, या बच्चे स्वयं डिक्शनरी कंसल्ट करके या अपने टीचर से पूछकर इन वर्ड्स के मीनिंग लिख सकते हैं, उनके सिनोनिम्स, उनके एंटोनिम्स और उन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में भी बुन सकते हैं, अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। इस प्रकार से अगर हम बच्चों को इस तरीके की एक्टिविटीज दें और बच्चे स्वयं भी अपने पार्टनर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ अपनी नोटबुक में या बोर्ड पर इस तरीके के गेम्स खेलें, तो इजीली, हैप्पीली, इंजॉय करते हुए वो अपनी वोकैबुलरी को एनरिच कर पाएंगे, न्यू वर्ड्स सीख पाएंगे। आइए अब हम देखते हैं कुछ और मेथड्स कि किस प्रकार से हम स्पेलिंग गेम्स खेल सकते हैं। लेट्स प्ले विद स्पेलिंग्स ऑफ वर्ड्स।